السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول جانور قسط نمبر 11۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ مداری شاید میرے خیال کی رو کے ساتھ ساتھ بھی چل رہا تھا، کہنے لگا، جیل کا سب سے بڑا افسر آتے آتے 10 منٹ تو لے گا، اس کے حکم سے ہی جیل کا بڑا پھاٹک کھلے گا اور گارڈ لوگ نہر کے منہ پر پہرا دینے کو آئیں گے۔ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ 15 منٹ ہیں، اتنی دیر میں اگر ہم اپنی سواری تک پہنچ گئے تو سمجھو بچ کر نکل جائیں گے، نہیں تو جوا تو کھیل ہی رہے ہیں۔ یہ اطمینان کی بات تھی کہ کہیں کوئی سواری آگے فرار کرانے کے لیے موجود تھی۔ ہمیں نہر کے داخلے کی جگہ تک پہنچنے میں 3 سے 4 منٹ لگ گئے۔ وقت پانی بن کر بہ رہا تھا۔ اس اندھیرے میں ابھی اور کتنا چلنا ہوگا؟ اتنی دیر میں جیل والے کہیں باہر نہ پہنچ گئے ہوں۔ مداری رک گئے، اس کے یکایک جانے سے مجھے فکر ہو گئی۔ وہ آگے پانی میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مداری بولا، یہ جیل کی دیوار آ گئی ہے، یہاں لوہے کا بڑا بھاری جال لگا ہے۔ میں نے مطلب ہے کایا بدل کر کے ریچھ بن بنے اس جال کو ایک جگہ سے ٹیڑھا کر دیا تھا، اندر آنے کی جگہ بنا لی تھی۔ میں وہ جگہ ڈھونڈتا ہوں۔ اندھیرے میں پانی کے ہولے ہولے بہنے کی آواز، مداری کے ادھر ادھر ہاتھ چلانے کی شپ شپ کے سوا سناٹا تھا۔ جیل کی آوازیں یہاں نہیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، ابھی کایا بدل سے گزرا ہے۔ میں کئی بار اسے دیکھ چکا ہوں کہ آدمی سے ریچھ اور ریچھ سے دوبارہ آدمی کے کالے میں آ چکتا ہے تو اس قدر کمزور اور نڈال ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے دل کے دورے سے گزرا ہے، مگر اس وقت اس میں اتنا دم کیسے ہے کہ میری رہنمائی کر رہا ہے؟ پانی کے ریلے میں ڈبکی لگا لگا کر جال تلاش کرتا ہے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ مداری ایک بار شاید پانی میں جھانکا، پھر نکلا تو پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بولا، مل گئی، یہی جگہ ہے، پر تم ہوشیاری سے آنا، ہاتھ پیر نہ پھنسا لینا۔ میرا ہاتھ ہمیں مداری جھکا، پانی میں بیٹھ کر ٹیڑھا ترچھا ہو کر اس نے خود کو جال کے باہر کی طرف نکال لیا۔ میں بھی اندر کے رخ تھا، ہاتھ سے کم از کم 1 انچ موٹی لوہے کی سلاخ سے مس ہوا۔ میں نے سلاخ اور دوسری کے درمیان چھو کر فاصلے کا تعین کیا۔ سلاخوں کو ویلڈ کر کے چوخانہ بنایا گیا تھا، جس میں کوئی ہوشیار بلی ہی اگر اسے غوطہ لگانا آتا ہوگا تو گزر سکتی تھی۔ بلی سے بڑا کوئی جانور اس فولادی چوخانے سے نہیں گزر سکتا تھا۔ مداری نے جال کی دوسری طرف سے میرا ہاتھ ٹٹول کر دیکھا، بولا، وہاں کدھر تلاش کر رہے ہو؟ نکلنے کا راستہ ادھر ہے۔ اور اس نے میرے ہاتھ کا ہی چڑی چکنی دیوار اور فولادی جال کے بیچ بنائے کے رکھنے تک پہنچا دیے۔ آتے ہوئے ریچھ مداری نے زبردست حیوانی طاقت سے مضبوط سلاخ کو موڑ کر دیوار سے ہٹا دیا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا بہت مشکل سے ترچھا ہو کر بدن کو سکیڑ سمیٹ کر اس رخنے سے نکلا جا سکتا ہے، لیکن ادھر ادھر زیادہ ہاتھ پیر چلانے، ڈھونڈنے تلاش کرنے میں خطرہ یہ تھا کہ خاص انداز میں مڑی ہوئی سلاخیں باہوں، بازوں، پیروں کو ایک ایسے گورکھ دندے مل جا سکتی تھی جن سے مرنے کے بعد اس وقت نجات ملتی جب گوشت گل سڑ جاتا اور پانی کا ریلا ہڈی کو ہڈی سے الگ کر دیتا۔ مداری بولا، اب دیر مت کرو۔ میں نے ڈبکی لگا کر سلاخ کے بیچ سے نکلنے کو ایک بازو اور شانہ بڑھایا، دوسرا بازو ترچھا ہوا اور سلاخ کے ٹیڑے میرے جال میں الجھنے لگا۔ مداری کو ادھر خطرے کا احساس ہوا، کہنے لگا، اگر ایک بازو ڈال دے تو فوراً نکالو، نہیں تو پھنس جاؤ گے۔ میں نے بازو اور شانہ نکالتے ہوئے گھبرا کر پانی سے سر باہر کیا۔ مداری کی آوازیں دونوں بازو کو پہلو سے چپکا کر مچھلی کی طرح اس جگہ سے پہلے آدھا بدن نکالو۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق کیا تو میں آدھا جال کی دوسری طرف تھا، مگر نچلا دھڑ ابھی نہیں آیا تھا، بہت مخصوص زاویے پر جھکا ہوا تھا۔ میں ایک بار پھر خوف سے لرز گیا، دونوں پیر اس پھندے سے کس طرح نکالوں؟ ادھر آگے تو کوئی گرفت، کوئی ٹکاؤ نہیں ہے۔ مداری میرے برابر آ کھڑا ہوا، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر لے کر آگے بڑھ جاؤں گا، خود سے کوشش مت کرنا، سمجھے؟ بدن کو ترچھا کر لو۔ وہ آدھا پانی میں ڈوبا ہوا میرے سامنے آ کر جم گیا۔ اس نے نرمی سے مجھے اپنی پشت پر لیا اور کہنے لگا، اپنا نچلا دھڑ مچھلی جیسا سمجھو، اسے ڈھیلا چھوڑ دو، میں تمہیں نکال لوں گا۔ اس کی پیٹھ کو چھو کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں برف کی سیل پر آ گیا ہوں۔ مداری کا پورا بدن اتنا ٹھنڈا کیوں ہے؟ مداری نے بڑی مہارت اور مضبوطی مجھے اٹھائے ہوئے 2 قدم آگے کی طرف لیے۔ میرے پیروں پنوں سے فولادی جال مس ہوتے ہوئے پیچھے رہ گیا۔ مداری کی طرح میں پورے کا پورا جال سے باہر نکل چکا تھا۔ اس نے آہستگی سے مجھے اتار دیا۔ ہم ابھی تک کمر پانی میں تھے۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ کہنے لگا، بس یہ میری آخری حد تھی، آگے مجھے سہارا دے کر لے جانا۔ اور یہ کہتے اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ ہاتھ اب برف جیسا سرد نہیں تھا۔ میں نے اندھیرے میں ہاتھ بڑھا کر اسے سہارا دیا، پیشانی چھو کر دیکھی۔ نہر کے فولادی جال سے مجھے ایک برف کے آدمی نے نکالا تھا اور اب مداری کی پیشانی گرم ہوتی جا رہی تھی، نہیں بلکہ تپنے لگی تھی۔ وہ میرے شانے پر اپنا بازو پھیلا کر جھول گیا، بہت کمزور آواز میں بڑبڑایا، میرا بدن اب گرم ہوتا جائے گا شیر علی، کمزوری بڑھتی جائے گی، اتار شروع ہو رہا ہے، خیال کرنا۔ وہ شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا کہ اتار شروع ہو رہا ہے؟ کایا بدلنے کے بعد اس کی حالت جو ابتر ہو جاتی ہے وہ یہی اتار ہوتا ہوگا۔ میں نے اسے پوری طرح سنبھال لیا۔ مجھے معلوم تھا بہت دیر تک وہ کسی قابل نہیں رہے گا، اور مجھے معلوم تھا اس تمام عرصے میں اس کا بدن آگ ہوتا رہے گا۔ میں نے سوچا یہ عجیب طرح کی کیفیت تھی، کبھی وہ برف ہو جاتا ہے اور کبھی آگ۔ میں مداری کو سنبھالے کچھ دیر نہر میں چلتا رہا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، تارو کھیل کی روشنی میں نہر کے ساتھ ساتھ چلتے ایک پگڈنڈی دکھائی دے رہی تھی، دائیں بائیں درختوں کے جھنڈ تھے۔
مداری کو سہارا دیے ہوئے بلکہ تقریباً گھسیٹتا ہوا میں نہر سے نکلا اور پگڈنڈی پر آ گیا۔ میں تیزی سے پگڈنڈی پر چلتا رہا۔ مداری نے بے ہوش بے حال ہونے سے پہلے جو کہا تھا میں نے وہ یاد کیا۔ اس نے کہا تھا ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ 15 منٹ ہے، اتنی دیر میں اگر ہم سواری تک پہنچ گئے اس نے کہا تھا، اور یہ بات کہے ہوئے کتنی دیر ہوگی، 10 منٹ 12 منٹ یا کچھ کم، اور وہ سواری کیا ہے، کہاں ہے؟ میں نے گزرتے وقت کی دہشت میں مداری کو اپنی پیٹھ پر لاد لیا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ 2 3 5 7 منٹ گزرے ہوں گے، یا اس سے کم یا زیادہ، کیونکہ میں وقت کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ ہم جیل سے زیادہ دور نہیں تھے۔ میں نے غور کیا، اس عرصے میں سائرن کی آواز ہلکی مگر بے رکے سنائی دیتی رہی تھی۔ بہت ہوئے تو ہم میل بھر دور ہوں گے۔ 1 میل کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس تیز رفتار گاڑیاں ہیں، اور مجھے معلوم تھا کہ کتے ہوں گے ان کے پاس، پولیس کے تربیت یافتہ جرمن نسل کے کتے جن کا کام فراریوں کو کھوج لگانا ہے۔ میں نے بھاگتے بے حد تھکن اور مایوسی میں سوچا، یہ سب کچھ بے نتیجہ رہے گا۔ وہ میرے فرار کی اطلاع پاتے ہی میری کوٹری میں پہنچے ہوں گے، اور میرے پہنے ہوئے کپڑے جوتے انہیں اپنے تربیت یافتہ کتوں کو سنگھائے ہوں گے تاکہ وہ میری بو پہچان لیں۔ پھر 2 3 مسلح گارڈز کو کتوں کے ساتھ جیل کی گرد و پیش میں بھیج کر وہ لوگ آرام سے بیٹھ گئے ہوں گے۔ باقی کام ان کے نہ ہوتے بڑی صورت سے انجام پائے گا۔ ان کے کتے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں اپنی تلاش پوری کر لیں گے۔ میں نے دور سے آتی سائرن کی بھیانک ہو اور جنگل کی سنسناہٹ پر حاوی کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی، یا یہ میرا وہم تھا؟ نہ، یہ کتے نہیں بھونکے تھے، کہیں قریبی گھوڑوں نے پھوں پھوں کر کے جیسے بیزاری کی آواز نکالی تھی۔ میں نے آواز کے رخ سر گھما کے دیکھا۔ گھنے نیم قد درختوں اور جھاڑیوں میں گھوڑے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک گھوڑے نے بیزاری سے پھر سانس لی تھی۔ کیا فائدہ، ہمیں دیکھ لیا گیا ہے۔ میں رک گیا۔ یہ یقیناً جیل کے گرد پیٹرولنگ کرنے والی گھڑ سوار پولیس ہوگی۔ مجھے رکوا دیکھ کر گھوڑوں کے برابر سے کسی نے جیسے تصدیق کر کے پوچھا، شیر خان؟ پوچھنے والے کا لہجہ رازدارانہ تھا۔ یہ پولیس نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا ہاں۔ یہ تو نے بابا کو اٹھایا ہوا ہے؟ یہ سوال سن کر مجھے اطمینان ہوا۔ یہ مداری کا آدمی ہے۔ ہاں بابا ہے، پر اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ زخمی تو نہیں ہے؟ پوچھنے والا بے تابانہ آگے آیا۔ میں نے دیکھا وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس کے دائیں بائیں 2 گھوڑے اور تھے۔ میں نے بتایا کہ نہیں، مداری زخمی نہیں ہے، غشی میں ہے، اس کا بدن بہت تپ رہا ہے۔ گھڑ سوار ظاہر سمجھتا تھا۔ اس نے بے فکر ہو کر کہا، اچھا وہ سب ٹھیک ہے۔ وہ گھوڑے سے اتر گیا، 3 گھوڑوں کی راہ سے تھامے اور درختوں کی اور سے نکل کر پگڈنڈی پر آ گیا۔ اس نے گھوڑوں کو تھپک کر اپنی بولی میں کچھ کہا اور انہیں کھڑا چھوڑ کر تیزی سے میرے پاس آ گیا۔ نوجوان آدمی تھا۔ اس نے مہارت سے مداری کو سنبھالا اور قریب والے گھوڑے کی راہ سے تھامنے کا کہہ کر مداری کو گھوڑے پر بچھی ہوئی دری پر اس طرح لٹا دیا کہ اس کا اوپری دھڑ ایک طرف اور نچلا دھڑ ایک طرف ہو گیا۔ اس نے کسی زندہ کو اس طرح گھوڑے پر لے جاتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بے ہوش مداری کو کپڑا بھی اڑا دیا تھا۔ دونوں گھوڑے سنبھالے پگڈنڈی چھوڑ کر درختوں جھاڑیوں میں راستہ نکالتا میری رہنمائی کرتا وہ تیزی سے ایک طرف چل پڑا۔ گھوڑے خوب آرام کیے ہوئے تھے اور اچھی تربیت دیے ہوئے تھے۔ میرا رہنما وہ جوان تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کو چمکارتا، ان سے بات کرتا چلا جاتا۔ میں نے سوچا اسے بتانا ضروری ہے، جیل والوں کے پاس کھوج لگانے والے کتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ بولا، ہاں مجھے پتا ہے۔ بڑے میاں کی طرف سے میں تشویش میں تھا۔ اسے اتنی خراب و خستہ حالت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے تشویش ظاہر کی تو گھوڑا میرے برابر لایا، کہنے لگا، بابا کی طرف سے مجھے بھی فکر ہے، اتنی محنت کا کام اس عمر میں اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے سمجھایا، اور بھی لوگوں نے کہا ہے، پر وہ خود آنے پر تلا ہوا تھا۔ آگے اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ دوسرے لوگوں نے بھی، تو میرا جی چاہا کہ پوچھو دوسرے لوگ کون ہیں، مگر سوچا بھی تو خود اس شخص کو نہیں جانتا، دوسروں کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں کسومی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، مگر یہ سوچ چپ ہو رہا۔ جنگل میں ہم کچھ دور نکل آئے، ایک پہاڑی چشمہ سامنے دکھائی دیا۔ نوجوان نے مجھے اشارہ کیا، اپنا گھوڑا اور بڑے میاں والا گھوڑا جس کی راہ سے خود تھامے ہوئے تھا بڑھا کر چشمے میں چلانے لگا۔ میں نے اس کے کہنے پر اپنا گھوڑا بھی پانی میں چلانا شروع کر دیا۔ وہ اپنا جانور قریب لیا، مجھ سے پوچھا، میں نے تمہیں بتایا نہیں، ویسے تم خود سمجھ گئے ہوگے کہ ہم پانی میں اپنے جانور کی چلا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، اگر جیل والوں نے میرے پیچھے کتے لگا دیے تو اس طرح پانی میں رہتے ہوئے ہم انہیں دھوکہ دے کر نکل سکتے ہیں۔ بولا ہوں، یہ ٹھیک ہے، کتے پانی میں ہماری بو نہیں اٹھا پائیں گے۔ ان سے جان چھڑانے کی ایک ترکیب یہ بھی ہوتی ہے، مگر تم نے یہ کیا کہا کہ اگر کتے پیچھے لگا دیے تو؟ اگر کیوں؟ کتے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں کیا؟ میں پریشان ہو گیا۔ وہ بولا، ہاں میل بھر پہلے میں نے آوازیں سنی تھی، وہ ٹھیک ہمارے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت تک تو ٹھیک ہی آ رہے تھے۔ میں سناٹے میں رہ گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتے ہمارے پیچھے ہیں؟ وہ ہلکے سے ایسا بولا، حیران کے ہو گئے۔ ایسی کیا بات ہے؟ میں جنگل ہی میں پیدا ہوا ہوں، یہی رہتا ہوں، اس لیے آواز، نشان، بو اور ایسے دوسرے سب اشارے تم شہر والوں سے پہلے ہی اٹھا لیتا ہوں۔ میں اسے کیا بتاتا ہے کہ میری بھی اب تک کی عمر جنگلوں میں گزری ہے، مگر وہ ہر حال میں زیادہ باعلم تھا۔ میں چپ ہو گیا اور فوری مصیبت کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ بولا، بابا کو تب آرام کے پورے 2 گھنٹے ملنے چاہیے، تبھی اس زندوں کی دنیا میں واپس آئے گا۔ اس کے بعد ہی ہم ساتھیوں سے ملیں گے۔ 2 گھنٹے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے نہیں مل سکتے۔ ساتھی؟ کہنے لگا، ہاں پورا قبیلہ ساتھ چل رہا ہے۔ ساتھ کس کے؟ ہمارے ساتھ۔ وہ ہنسا، ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ہاں اور کیا، آواز نہیں سن رہے؟
बकरियों के रेवड़ सबसे ज़्यादा शोर करते हैं। मैंने खफीफ से होकर बकरियों की आवाज़ सुनने की कोशिश की, फिर इसे कोशिश फजूल समझकर तर्क कर दिया। नौजवान कबायली ने ज़्यादा शर्मिंदा न किया बोला, तुम घबरा के भागे हुए आ गए हो, अगर आराम आराम से चल रहे होते तो मेरी तरह आवाज़ें भी सुन लेते। मैं जानना चाहता था, इसलिए पूछा कि मदारी के होश बहाल होने से पहले हम क्यों कबीले वालों से नहीं मिल सकते। बोला, सरदार को कमज़ोर कच्चा देखकर लंगड़े गिद्दड़ भी सरदार बनने के ख्वाब देखने लगते हैं, इसलिए। मैंने कहा, मैं नहीं समझा। तुम्हें नहीं खबर कि बाबा इस वक्त समझो आधा मर गया है, इस बार 2 घंटे तक ऐसा ही रहेगा। मैंने कहा, हाँ मुझे खूब इल्म है, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। सिवाय इसकी कि बेहोशी बेहाली इस दफ़ा कहीं ज़्यादा गहरी है, और यह कि यह हालत मेरी देखी हुई है। कहने लगा, बाबा अरावड़ी के सबसे भारी कबीले के सरदार हैं, ये खबर तुम्हें है? मैंने कहा, नहीं तो। मुझे हैरत हो रही थी। मैं जिस बेनुमा मदारी को अपने दानिस्त में बहुत चालाकी से कॉन्टिनेंटल होटल में महाराजा बनाकर बिठाया था, वो खुद पैदाइशी सरदार था। मुझे खबर ही नहीं थी कि कॉक्सिस बाज़ार में हमारे गेस्ट हाउस के बचे कुचे खाने से इनकार करने वाले मुफलिस और बावकार मदारी किसी बड़े भारी कबीले का सरबराह है। मेरी रहबरी करने वाले नौजवान ने ठंडी सांस भरी बोला, ये सारे खटराक से सरदारी वरदारी से बाबा उकता गया था। 6 बरस होते हैं। उधर मांगयान में छोटा सा शहर है, बाबा ने कॉलेज खोला था। कॉलेज? मेरी हैरत बढ़ती जा रही थी। हाँ बाबा, इसका प्रिंसिपल था। ऑक्सफोर्ड नाम की कोई जगह है, बाबा इधर का पड़ा हुआ है। मैंने बेख्याली में अपने घोड़े की बागें खींच ली। ऑक्सफोर्ड? हद हो गई। नौजवान ने मुझे रुकते देखकर पूछा, क्या बात है? कुछ नहीं, मैंने कहा, ऑक्सफोर्ड तो बहुत बड़ी जगह है। हाँ यही तो मैं बोलता हूँ। वो पूरी बात सुन नहीं पाया था, आगे अपने रो में कहने लगा, उधर मांगजान के कॉलेज में बड़ा पैसा लगा दिया बाबा ने, सब लगा दिया। वो इधर ही रहता है, कबीले के बहुत से नौजवानों को उधर ले गया है। हम सब जनों को धीरे धीरे करके मांगयान में रोकना चाहता था, पर बेटा मर गया तो अपने पोता पोती का और कबीले का खटराक फिर से हाथ में लेना पड़ा। क्या करता? खबर नहीं मांगयान कॉलेज अभी चल रहा है या नहीं। तो इसलिए कहता हूँ, इसे इस कमज़ोरी में लेकर मैं कबीले नहीं जा सकता। कबीले के 2-4 घर तगड़े लोगों के पहले से बकबक कर रहे हैं, कॉलेज खोलने पर नाराज़ है। कहते हैं हज़ारों बरस से हमारा कबीला अरावड़ी दरिया की तराई में 1000 मील ऊपर 1000 मील नीचे राज करता था, और अब इस बुढ़े ने मांगयान के लांती कस्बे में पाठशाला खोलकर हमारे पैरों में बेड़ी डालने का यत्न किया है। देखो ना, बाबा को हमारी बड़ी फिक्र है। इसका बेटा नहीं रातों में भी सरदार नहीं रहने दिया, दौड़ा दौड़ा आ गया। इस बात से वो तगड़े 3-4 घराने और जल गए। समझ रहे थे ये अब नहीं आएगा, बल्कि पोता पोती को बुला लेगा, मांगयान में ही रहेगा। तो यह है किस्सा। मैं इसे अंदरलालों बदमाशों के सामने इस हालत में नहीं ले जा सकता। मैंने इस बात में सर हिलाकर इससे इत्तफाक किया। मदारी की बेहोशी को, मगर मैं ऐसे भारी कबीले के ज़बरदस्त सरदार को अभी तक मदारी क्यों कह रहा हूँ? तो बड़े मियाँ की बेहोशी को 1 घंटा हो चुका था कि नौजवान कबायली ने अचानक अंधेरे में एक जानिब इशारा किया, मुझसे कहा, शेर खान। वो अब तक ठीक आ रहे थे, कुत्ते वाले, पर अब वो भटक गए, उधर दूसरी तरफ चल पड़े हैं। पानी में उतर के अच्छा किया हमने, पीछा छुड़ा लिया। आओ, तेज़ चलने का वक्त आ गया। वो चश्मे से अपना घोड़ा निकाल कर दूसरे घोड़े की रास्ते थामे वो हमवार मैदान की तरफ डपट पड़ा। कोई आधे घंटे हमने तेज़ी से रास्ता तय किया, फिर एक पहाड़ी का कटाव देखकर उसने घोड़े रोक दिए। अपने घोड़े से कूदकर उतरा, मुझे मदद का इशारा किया, और बड़े मियाँ को जब तक जानवर की पुश्त पर बेसुध पड़े थे संभाल कर उतार लिया। इसने मिट्टी पर सीधा लिटा दिया। मैंने पेशानी को हाथ लगाकर देखा। बड़े मियाँ के बदन की हरारत मामूल पर आती जा रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो कराहे भी थे। कबायली मुतमईन था, कहने लगा, पाव घंटे में ऐसा हो जाएगा कि हम बाबे को घोड़े पर बिठा कर ले चलेंगे। काफिला बहुत हुआ, इधर से 2 मील दूरी पर होगा। दिन उगने से पहले हमको बड़ी सड़क पर आ जाना है। बड़ी सड़क? मैंने पूछा। कहने लगा, रंगून से दूसरे नंबर का शहर है मंडाले। राजधानी रंगून से सीधी सड़क मंडाले जाती है, फिर वो ऊपर 2 शाखों में बढ़ जाती है। एक शाख सीधे हाथ मुड़कर चीन की तरफ निकलती है, और दूसरी बाएं हाथ घूमकर ऊपर हिंदुस्तान के कस्बे आसाम में अम्फाल शहर से जा मिलती है। पहले हमें बर्मा के शहर मंडाले में रुकना है। बरसात का मौसम हम इधर ही मंडाले में गुजारते हैं, जाड़ों में ऊपर चल देते हैं। अम्फाल की तरफ हिंदुस्तान में नहीं जाते। उधर बॉर्डर के पास मेला भरता है, 2 महीने वहीं काटते हैं। हर साल ऐसा ही करते हैं। कोई 10 मिनट तक बड़े मियाँ मिट्टी पर बेसुध पड़े रहे, फिर कसमस आकर और बदलकर उन्होंने आंखें खोल दी। कबायली ने झुककर तारों की रोशनी में बुढ़े का चेहरा देखा। धीरे से कहा तो बड़े मियाँ ने हूँ कहकर जवाब दिया। नौजवान ने सारा देकर उठा दिया। मैंने पूछा, कैसे हो बाबा? उन्होंने हाँ में सर हिलाया। बड़े मियाँ ठीक होते जा रहे थे। नौजवान से जीन से बंधी हुई पानी की बोतल से पानी दिया। जेब से पके हुए खुरमे या आलू बुखारे की तरह का कोई फल निकाल कर खाने को दिया। बड़े मियाँ इसे मुंह में घोलते रहे। नौजवान की पेशानी छूकर और नब्ज पर उंगलें रखकर अपना इत्मीनान की ओर कहने लगे, अब चल सकते हैं। बड़े मियाँ सारे से घोड़े पर सवार हो गए, लेकिन आगे अपनी हिम्मत से जाते रहे। 1.5-2 मील का फासला हमने तेज रफ्तारी से तय किया।
काफिले की आवाज़ें मुझे आधे मील से सुनाई दे रही थी। मवेशियों का शोर, गाड़ियां हाँकने वालों की आवाज़ें, कभी बच्चों के बेदार होकर फील्ड में जाने का शोर और कभी रेडियो ट्रांसिस्टर पर फिल्मी गीतों के बोल भी सुनाई दे जाते। फिल्मी गीत सुनकर मैं दिल दिल में मुस्कुराया। एशिया का कोई सा मुल्क घूम देखो, हिंदुस्तान के गाने वालियों और गाने वालों की आवाज़ें तुम्हारा पीछा करती रहेंगी। गीतों की जुबान चाहे समझ में ना आए, धुनें हर जगह पसंद की जाती हैं। हम काफिले से चंद फरलांग दूर थे तो घोड़ों पर सवार 2 कबायली नजर आए। उन्होंने तारों खेल की रोशनी में भी बड़े मियाँ और हम कबीला नौजवानों को पहचान लिया। करीब पहुंचे तो मैंने देखा दोनों नूमर लड़कियां थीं। दोनों के कांधे पर राइफलें टांग रखी थी। वो सीधी बड़े मियाँ के पास पहुंची। एक ने अपने सरदार से सरगोशी में कुछ कहा। बड़े मियाँ ने गौर से सुना और साथ आने वाले कबायली को कुछ हदायतें दी। अंधेरे में घोड़ा दौड़ाता एक लड़की के साथ चला गया, दूसरी हमारे साथ साथ चलने लगी। बड़े मियाँ अपना घोड़ा मेरे करीब ले आए। लड़की हमसे आगे हो गई। वो इतनी दूर चली गई कि हम दोनों की बातें न सुन सके। बड़े मियाँ ने धीमी आवाज़ में पूछा, शेर अली, लड़के ने तुम्हें बता तो दिया होगा कि मैं कौन हूँ? मैंने कहा हाँ। अगर आप खुद बता देते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। कहने लगे, तुम अच्छे दिनों में मिलते तो मैं खुद से मांगियान कालिद का जिक्र भी करता और तुम अपने साथ लेकर जाता और सब कुछ दिखाता भी, अपने साथ रखता। बड़ी मेहनत से हम सब ने अपने अपनी जगह बनाई है। मेरे साथ तुम जैसे बहुत से नौजवान हैं। कुसुमी इस वक्त वही मांगियान कॉलेज की लड़कियों के हॉस्टल में ठहरी हुई है। तुम्हारी अमानतें सब महफूज हैं। वो ख्याल से संभाले हुए है सब कुछ। यहाँ के मामलों से फारिग होकर वहीं जाएंगे। मांगियान समझे अपनी चीज़ें तुम संभाल लेना। मैंने कहा, चीज़ों का जिक्र आप क्या ले बैठे? मैं तो चाहता था हम तीनों, कुसुमी और मैं, किसी खतरे से दूर हो जाएं। वो सब मालो दौलत जो भी है वसीला बन गया था यहाँ से निकलने का। अब देखेंगे क्या होता है। बड़े मियाँ बोले, मैंने तुम्हें जेल से निकाल कर एक ख़ास मकसद में अपने साथ रखने का इरादा किया था, मगर अब लगता है मुझे कुछ इंतज़ार करना होगा और वक्त मेरे पास अब बिल्कुल नहीं है। तुमने देखा काय बदल पीछे, इस बार मेरी हालत क्या हुई। समझो तलवार की धार जैसी बारीक सरहद से लौट कर आया हूँ। एक कदम आगे जाता तो इस बार जिंदा ना लौटता। ये सब कुछ अब ज़्यादा नहीं चल सकता। मैंने कहा, ज़्यादा परेशान ना हो। इन्हें तसल्ली दी और शुक्रगुजारी में कहा कि मैं जब तक जीऊँगा आपके एहसान नहीं भूलूंगा। मुझे जेल से निकाल कर आपने नई ज़िंदगी दी है। तो कहने लगा, सोचा तुम्हें किसी धोखे में ना रखूँ, सब कुछ बता दूँ। ये जो मैंने किया है और करना चाहता हूँ ये बेगर्जी में नहीं था, मेरी अपनी बहुत बड़ी गर्ज थी तुमसे। वक्त आने पर पूरी बात खुद ही समझ में आ जाएगी। इस वक्त और बड़ी उलझन आ पड़ी है। कबीले के कुछ लोग हैं, बहुत थोड़े हैं मगर मजबूत और बासर हैं। वो बरसों से मेरी मुखालफत कर रहे हैं। मैंने कहा, जी मालूम है। बड़े मियाँ बोले, मैं 3 रोज़ से इनके साथ नहीं हूँ। तुम्हारा खोज लगाने, जेल से निकालने में लगा हुआ था। 3 दिन? मैं क्या कहता, एहसान मंदी में सर झुका चलता रहा। कहने लगे, इन 3 दिनों में मेरे मुखालफों ने कबीले के लोगों में बेचैनी और बेतमादी बहुत बढ़ा दी है। बड़ी उम्र के लोग पहले ही शिकवा करते रहते हैं। इस वक्त लगता है मेरे खिलाफ बगावत की सी फजा बन गई है। नौजवान सब मेरे साथ हैं, बूढ़े और दरमियानी उम्र के बागी हो गए हैं। क्या किया है उन्होंने? हथियारों पर कब्जा कर लिया है। 2 गाड़ियाँ जिनमें राइफल, मैगजीन और ऐसी चीज़ें छुपाई गई हैं दोनों मुखालफों के पहरे में आ गई हैं। मैं इस नई इफ्तार के लिए तैयार नहीं था। अब क्या होगा? मैंने पूछा। मुझे बहुत परेशान देखकर बड़े मियाँ ने तसल्ली दी और कहने लगे, दुनिया है यही, सब चलता रहता है। ये छोटी मोटी जंग है। दूसरे ताकत और कब्जे के लिए मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और मुझे अपने बच्चों के लिए नया रास्ता बनाना है। कबीले की सरदारी पर किसी और वजह से कब्जा नहीं रखना चाहता। मैं नई उम्र के लोगों को इन बदमाशों की गिरफ्त से आज़ाद कराना चाहता हूँ। वो बच्चों को खाना बदोश और जाहिल रखना चाहते हैं ताकि इन रेवड़ की तरह हंकाते रहें, इनकी मेहनत के फल खुद समेटते रहें। मैं ये नहीं होने दूंगा जब तक जिंदा हूँ, जब तक भी हूँ। पर कोई ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। मैंने तासुफ के साथ कहा, मेरी वजह से आपकी मुश्किल और बढ़ गई। बड़े मियाँ बोले, हम पहले ही से बड़ी मुश्किल में थे। अगर मेरा हिसाब ठीक बैठा तो हो सकता है तुम्हारी वजह से हमारी मुश्किलें हल हो जाएं। मैंने धीरे से कहा, जो कुछ मेरे लायक हो बताइए। और इस वक्त मैंने सामने अंधेरे में एक भारी भरकम हिला सा बेआवाज़ अपनी तरफ बढ़ते देखा। इसके आगे के 2 साए मुशक्कत की सांसों के साथ इसे आहिस्ता सा खींच के ला रहे थे। मैंने अंधेरे में नजरें गिराकर खामोशी के साथ आने वाली इस चीज़ को पहचानने की कोशिश की। एक बेढब ऊंची सी पहिए लगी कश्ती जैसी गाड़ी को 2 कव्वी भैंसे खींचते हुए ला रहे थे। मोटर के टायरों की वजह से चलने की आवाज़ नहीं हो रही थी। सिर्फ भैंसों की पुरमुशक्कत सांसें असदे की फुंकार की तरह सुनाई देती थी। बड़े मीना के लड़के गाड़ी ले आए हैं, तुम ये घोड़ा गाड़ी छोड़ दो, गाड़ी में बैठ जाओ जल्दी। इनका लहजा सरदार कबीला का लहजा था। मैंने इस कश्ती नुमा भैंसा गाड़ी के साथ घोड़ा रोक दिया और उतर पड़ा। गाड़ी लाने वो नौजवान उछलकर मेरे घोड़े पर सवार हुआ और इसे सर पर दौड़ाता अंधेरे में गायब हो गया। बड़े मीने ताज़ियानी की तरह चटकते हुए लहजे मुझसे कहा, खड़े क्या देखे हो, बैठो। वो नर्म खो आदमी था। इस लहजे मुझसे अभी तक कोई बात नहीं की थी उन्होंने। कुछ उलझन, कुछ शिकवा सा दिल में लिए मैं गाड़ी में बैठ गया। ऊंची चिमनी का मिट्टी के तेल से जलने वाला एक लैंप अंदर गाड़ी की छत से लटक रहा था। भैंसा गाड़ी के अंदर से बहुत फराख और कुशादा लगती थी। यह रेलगाड़ी के बैंजो जैसी सीटें और सामान रखने की जगह और खाने थे और गाड़ी की दीवारों में बनी अलमारियां थी। अंदर की रोशनी जरा भी गाड़ी से बाहर नहीं जा सकती थी। काले रंग के पर्दे खींचे हुए थे।
मैं अंदर पहुंचते ही सीट पर बैठ गया, मगर किसी ने हाथ उठाकर मुझे सीट से उतारा और फर्श पर बिठा लिया। मैंने देखा ये कबीले के सैशलूके और तहमद जैसे सिरविंग या लाचे में मलबूस लड़की थी। इसने टूटी फूटी उर्दू में माजरत की, माफ़ी करना, इधर नहीं, तुम्हारी जगह इधर है। मैंने बर्मी में कहा कोई बात नहीं, नीचे ऊपर जहाँ बिठाओगी बैठ जाऊँगा। हल्की आवाज़ में हंसी, शायद इसे तोक्को नहीं थी कि मैं इतनी ठीक ठाक बर्मी बोलूँगा। बाहर घोड़ों के सर पर दौड़ाए जाने की आवाज़ें, इसके साथ ही मैंने एक आवाज़ सुनी। ये कुत्तों के भौंकने की आवाज़ थी। कुत्तों की आवाज़ दूर से आ रही थी, मगर इस फासले से भी पहचान सकता था। खोज उठाने वाले जर्मन नस्ल के कुत्ते भौंकते आ रहे थे। बड़े मियाँ के जल्दी करने की वजह समझ में आ गई, और ये कि उन्होंने सवार होने को क्यों कहा था। हम सफ़र बर्मी लड़की मेरा हाथ पकड़कर गाड़ी की फर्श से उठी और सरगोशी में बोली, इस गाड़ी के फर्श में छुपने की जगह है, 1 मिनट के लिए सीट पर बैठो, मैं जगह तैयार कर दूँ। मैं सीट पर जा बैठा और इसे बहुत मुस्तैदी और तेज़ी से काम करते देखने लगा। इसने फर्श पर बिछा कालीन का टुकड़ा उठाया। कालीन के नीचे एक तख्ता जो फर्श में खूब जुड़ा हुआ दिखाई देता था, इसने उठाकर एक तरफ रख दिया। नीचे मखमल बिछी एक पुरतकल्लुफ़ कब्र सी दिखाई दी, और इसमें एक तकिया भी पड़ा था। लड़की ने इशारा किया, ये तुम्हारा बिस्तर है, आओ लेट जाओ। मैंने घबराकर पूछा, मैं लेट जाऊँ तो तुम ऊपर तख्ता जमाकर कालीन बिछा दोगी? कहने लगी, हाँ। मेरा दम नहीं घुट जाएगा। वो हंसी। कब्र में नीचे हाथ पहुँचाकर इसने कीफ सी निकाली। कीफ के सिरे पर रबर का पाइप लगा था। ये कीफ इसने मेरे चेहरे के सामने कर दी। दम नहीं घुट सकता, इसमें से ताज़ा हवा आती है। फरफर हवा चली आ रही थी। मैंने अपनी लंबी बाहें फैलाकर गाड़ी की दीवारों से छत की तरफ इशारा किया, बोली, यह रबड़ का पाइप यहाँ से होता हुआ गाड़ी की छत से बाहर निकला है। रोशनी में देखना बिल्कुल चिमनी की तरह दिखाई देता है, बना भी चिमनी की तरह है। अगर बारिश होने लगी तो एक कतरा भी अंदर नहीं आएगा, हवा आती रहेगी। चलो बस लेट जाओ जल्दी। मैं क्या करता मुस्कुराता हुआ इस आरामदेह मगर परेशान कर देने वाले खांचे में जा लेटा। तख्ता बंद करने से पहले वो आहिस्ता से मुस्कुराकर बोली, तुम अंधेरे से तो नहीं घबराते? बस अंधेरा होगा अंदर, मगर अंधेरा तो बाहर सब जगह है। दिन निकलेगा तो कुछ रोशनी हो जाएगी। मैंने कहा कि इतनी देर छुपना पड़ेगा दिन निकलने तक? क्या पता। इसने कीफ मेरे मुंह पर ढक दी, फिर तख्ता रख दिया। अंदर मुकम्मल अंधेरा हो गया, मगर बाहर की आवाज़ें बराबर सुनाई दे रही थी। गाड़ी हाँकने वालों ने ऊंची आवाज़ में कोई बर्मी देहाती गीत गाना शुरू कर दिया था। इसका मतलब हमारा ताक़ुब करने वाले करीब आ गए हैं। गाड़ीबान इन्हें सुनाने को गा रहा है, मगर जल्दी गाने पर हावी होती कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर गाड़ी वाले ने गाना बंद कर दिया, और अगले लम्हे जैसे जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए गए। जीप, गाड़ियों की रेस करते इंजन, हवाई फायर और लोगों को खबरदार करने की आवाज़ें, गाड़ी वाले की फरियाद और उससे बुलंद जेल के खोजी कुत्तों की शैतानी आवाज़ें। मैंने सोचा बड़े मियाँ फरार हो चुके हैं। गाड़ी पर मेरे सवार होने के बाद मैंने घोड़ों के सर पर दौड़ने की जो आवाज़ सुनी थी, तो ये बड़े मियाँ और इनके बॉडीगार्ड इस राइफल वाली नौजवान लड़की के घोड़े होंगे। कुत्तों ने और जेल गार्ड ने हमारे भैंसा गाड़ी को पूरी तरह घेर लिया था। ये बड़े मियाँ ने किस तरह का इंतजाम किया है? खोजी कुत्ते तो मेरे मुंह पर आते ही गाड़ी को छोड़कर अब नहीं हटेंगे। ये लोग मुझे फर्श में कब तक बंद रखेंगे? जेल वाले और कुत्ते इस गाड़ी को दिन निकलने तक घेर रखेंगे, फिर दिन में वो गाड़ी को उधेड़ कर रख देंगे। मैं नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। 5-6 मिनट या 10 मिनट कुत्तों का ये दीवाना करने वाला शोर जारी रहा। सर्द मौसम के बावजूद ऊपर आती हवा, सर्द हवा में सांस लेते हुए मुझे पसीना आ गया। आखिर मुझे पकड़ा जाना है, और जबकि ये लोग मुझे और काफिले तक पहुंच गए हैं, तो बड़े मियाँ भी किस तरह इनके चुंगल से बच सकते हैं? इनके दुश्मन जो काफिले में है, क्या वो इन्हें सरकारी लोगों के हवाले नहीं कर देंगे? ठीक है, बड़े मियाँ इस वक्त घोड़ा सर पर भगाकर निकल गए हैं, कुछ देर में इन्हें घेर लिया जाएगा। मगर मैंने एक आवाज़ सुनी और जान गया कि बड़े मियाँ कबीले के सरदार हैं, गए नहीं, अपने मेहमान अपने लोगों के साथ हैं। गाड़ी के पिछले हिस्से से रीछ के इंतहा गज़ो गज़ब में चीखने की आवाज़ सुनाई दी। बड़े मियाँ काया बदलकर हमारी गाड़ी के साथ चल रहे थे। फिर गाड़ी वाले ने कुत्तों के भयानक शोर से बुलंद करते हुए अपनी आवाज़ जेल के अहलकारों तक पहुंचाई। वो बहुत गुस्से में लगता था, चीख चीख कर कह रहा था, अरे अपने कुत्तों को हटा रहे, रीछ को जख्मी कर देंगे, हटाओ इन्हें। गरीब तमाशे वाले की रोज़ी ख़त्म करोगे क्या? रीछ बेकार हो गए तो हम बेकार हो जाएंगे, क्यों हमारी रोज़ी के पीछे पड़े हो? अरे हटाओ इन्हें। काफ़ी देर तक कुछ नहीं हुआ। कुत्ते इसी तरह गाड़ी को घेरे रहे। गाड़ीबान की फरियाद करता गुस्सा दिखाता रहा। फिर किसी बाइख्तियार की आवाज़ ने मुख्तलिफ हकाम दिए और पागलों की तरह भौंकते हुए कुत्तों को खींचकर गाड़ी से दूर ले जाया गया। वहाँ से भी इनकी चीखों पुकार करने की बेताब होने की आवाज़ आती रही। किसी ने, बल्कि ये इसी बाइख्तियार की आवाज़ मालूम होती थी, कहा, गाड़ी से उतर आ रहे। ये हुक्म गाड़ीबान को दिया गया तो उतर गया होगा। हुक्म न मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बाइख्तियार आवाज़ ने सवाल किया, हाँ रे, कहाँ जा रहा है? कौन कौन है गाड़ी में? गाड़ी वाले ने बताया कि साल के साल इसका काफिला हिंदुस्तान के सरहदी इलाके अम्फाल के करीब बरमी सरहद तक जाता है। मेले में शरीक होता है, इस वक्त वहीं जा रहे हैं, और गाड़ी में वो खुद है, इसकी बहन है, और बाहर ये रीछ है। अफसर ने कहा, बहन को अपनी गाड़ी से निकाल, बुलाए से बाहर। गाड़ीबान ने लड़की को आवाज़ दी। हाँ रे हाँ, कहती हुई गाड़ी से उतर आई। उतरने से पहले से मुझे हौसले देने को फर्श पर थपकी दी थी। बाहर से इसी अफसर की तारीफ करती लुच्चर बाजारी सी आवाज़ें, आहा हा, यहाँ छुपा के रखा अपनी बहन को, ओहो हो, खूब चीज़ है।
गाड़ीबान की मस्कीन मगर डंक मारती हुई आवाज़ आई, हाँ दूसरे की चीज़ होती है ये, बहनों को तो इसी तरह छुपा के रखना होता है साहिब। आप भी तो छुपा के रखते होंगे, चुबारे बिठा के तो नहीं ना रखते होंगे अपनी बहनों को। क्या बकता है। जेल के अफसर ने याद से थप्पड़ मारा था, ये चाबुक जबरदस्त कड़क सी सुनाई दी थी। गाड़ीबान नौजवान की मस्कीन आवाज़ सुनाई दी, नाराज़ क्यों हो गए, क्या कुछ गलत कह दिया? पकड़ लो इस डैश को। जेल अफसर ने गाड़ीबान को गाली देते हुए हुक्म दिया। वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी कर सकता था। गाड़ीबान जैसे इसकी नादानी पर हंसते हुए बोला, आप वर्दी वाले अधिकारी लोग हैं, सरकार के लिए काम करते हो, हमारी जान इज्जत को आपसे तो कोई खतरा नहीं, मारो साले को। किसी ने शायद बैल से ज़रब लगाई थी। इसकी आवाज़ से ज़ात की रीछ बहुत गुस्से में चीखने की आवाज़ आई। वो गाड़ीबान पर हो रही ज्यादती पर सख्त बरम हुआ था। गाड़ीबान बोला, रीछ मुझसे प्यार करता है, मारना पीटना तो मुझे दूसरी तरफ ले जाकर मारो पीटो भैया, नहीं तो ये बिबलाता आप लोगों पर गुस्सा करता रहेगा खामखा। लड़की ने कहा, ऐसा क्या कसूर हुआ है जो आप लोग भैया को मार रहे हो खामखा? तू चुप रहे, अफसर ने कड़क के कहा। गाड़ीबान की आवाज़ आई, हाँ री हाँ चुप रहे, अधिकारी लोग हैं, ज़रा ऊपर गुस्सा करके भगजक करके चले जाएंगे। जाएंगे नहीं बेटा, तुझे और तेरी इस बहन को लेकर जाएंगे। क्यों जी, क्यों लेकर जाएंगे? दूर के अंधेरे से आवाज़ आई होगी। मैंने लकड़ी मखमल की इस पनागाह में लेटे महसूस किया जैसे इस आवाज़ का रंग गहरा सुर्ख है। ये नया बोलने वाला गाड़ीबान की तरह मस्किनी से नहीं बोला था। इससे ज्यादती करने वाले को जैसे अंधेरे के फैलाव से टोका था, चैलेंज किया था। तू कौन है रे, सामने आ। सामने हूँ साहिब। आवाज़ और तीखी हो गई और करीब आ गई थी। अरे सामने आ। अफसर झुंझुलाते हुए जैसे एक तरह की बेचैनी में चीखा। ये लो साहिब आ गया सामने। आहा, फौजी है, जब भी टेढ़ी में बात करता है। एक बात याद रख भाई, हम भी बांटे के नौकर नहीं हैं, सरकारी लोग और अफसर हैं। हाँ जी, बराबर ऑफिसर हो। ये लोग आपके सल्यूट। फौज ने हंसती आवाज़ में इसकी बात की और खड़ा करके जेल अफसर को सल्यूट मारा था। चल सल्यूट फ्लूट को रहने दे। ये बता, हमारे आर्डर पर सवाल किया तूने? तू अपने काम से काम रख, हमें अपना काम करने दे, समझा भाई? सवाल नहीं किया, आपके ऑर्डर पर डिप्टी सुप्रीडेंट साहिब अपनी ड्यूटी बजाई है। तेरी ड्यूटी इधर जंगल में? हाँ जी, जंगल बेड़े दलदल टीरे, जिधर भी ये लोग काफले वाले जाएंगे इधर हम ड्यूटी बजाते चलेंगे। जेल वाले के लहजे में हैरत थी। काफले की ड्यूटी क्या मतलब? मतलब यह है साहिब के बॉर्डर तक साथ जाएंगे, इसलिए कि कोई इन लोगों को सताए नहीं। उधर मेले में भी साथ रहेंगे। वापसी में रंगून मंडाले रोड पर लगा के हमारी प्लाटून अपनी छोनी को लौट जाएगी। प्लाटून? तुम बोलते हो पूरी एक प्लाटून साथ है? जेल वाला तू से तुम करने लगा था। हाँ जी डिप्टी सुप्रीडेंट साहिब, पूरी जाएगी, आधी प्लाटून तो कहीं नहीं जाएगी। फौजी ने जेल अफसर के अहमकाना सवाल का जैसे मजाक उड़ाया था। अच्छा। डिप्टी सुप्रीडेंट जेल सोच में पड़ गया। वो इस बात से भी परेशान हो गया कि जेल में फौज वालों से झकझक तो होती रही थी, अभी तक जंगल में भी होने लगी। जेल वालों ने जैसे फिर तुम पकड़ा। सुनो जी, एक कैदी जेल से भागा है, हमारे खोजी कुत्तों ने यहाँ तक खोज उठाया है। कुत्ते सीधे इस गाड़ी पर आए हैं, कैदी इसी गाड़ी में है, हमें तलाशी लेनी है। लो जी साहिब, ज़रूर तलाशी लो। और कोई हुक्म? असल में साहिब प्लाटून कमांडर आगे आगे चलता है, कोई बात होते हुए प्लाटून कमांडर को वायरलेस करके पूछना होता है। पर आप सरकारी काम पर आए हैं, आपको तलाशी लो आराम से। चल भाई रीछ को हटा इधर से, साहिब की गाड़ी की तलाशी लेंगे। या कुछ जुमला फौजी ने गाड़ीबान से कहा होगा। दोनों तरफ से हल्की फुल्की खैर सगाली की सी फिजा पैदा हो गई थी। गाड़ी की तलाशी मेरे और कबीले वालों के लिए कोई परेशानी की बात नहीं थी। गाड़ी की आवाज़ आई, रीछ एक तरफ बंधा है, आप लोग चढ़ जाओ गाड़ी पर, मैं खड़ा हूँ इधर। खड़बड़ करके वो से आदमी गाड़ी पर चढ़ गए। गाड़ी के अंदर भला कौन था? उन्होंने सामान रखने के रैक और अलमारियाँ खोल खोल कर देखी। ये आवाज़ें में दम साधे पड़ा सुनता रहा। किसी ने, ये शायद इनका अफसर ही होगा, कहा गद्दियाँ हटाओ। फिर सीटों के कब्जे लगे, ढकने उठाकर अंदर झांका गया होगा। एक सिपाही ने अंदर से ऊंची आवाज़ में पूछा, ओ गाड़ी वाला, ये क्या भरा हुआ सीटों के अंदर? बूरे हैं भैया जी, सूखी मछली का, शिकारी जानवर को सूखा गोश्त है भैया। ये गाड़ीबान की आवाज़ थी। याख तेरे की, थू साला कैसा बास मारता है। अब गाड़ीबान की खुश मिजाजी से हंसने की आवाज़ आई, राशन पानी है भैया हम लोग का, और क्या? अंदर कोई नहीं है तो फिर क्यों कुत्ते पागल हुए जा रहे हैं? ई रे, अफसर किसी माता से सवाल कर रहा होगा। इसने इस ख्वाल खुद से पूछा होगा, साहिब ये गोश्त मछली बास मारता है, इसके कारण दिमाग खराब हो रहा है इन सालों का। नहीं रे, अब कोई दूसरा सिपाही था। अरे रीछ पर चढ़े आ रहे हैं कुत्ते, देखा नहीं? गांव में मदारी आता तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए रीछ के पीछे हो लेते हैं। बकवास कम किया करो नाइक। छाजा जी चलो उतरो, इन कुत्तों के मुंह बंद करो, धोबड़े चढ़ा दो, खामखा रात भर दौड़ाते फिर रहे हैं, डैम इट। परेशान होकर सब लोग गाड़ी से उतर गए। अच्छा ठीक है, डीएसपी ने इस फौजी अफसर से कहा। इसने फर्माबरदार मातहत की तरह पूछा, गाड़ी को जाने दो साहिब। फिर कुछ देर बाद जीप के रेस करने और कुत्तों के दीवानावार भौंकने की आवाज़ें आई। मुखालिफ समत में जाते हुए कुत्तों ने जंगल सर पर उठा लिया था। ये सब आवाज़ें दूर होती गईं, जंगल का सन्नाटा लौट आया।
میں نے اپنی مخمل کی پناہگاہ میں مسکراتے ہوئے سوچا کہ ایک بار پھر میں بچا لیا گیا ہوں۔ معزز سامعین حضرات، جانور کی کہانی بھی جاری ہے۔ باقی واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔